Hello everyone, welcome to my channel Crack GPAT and NAPER G tips and tricks. Today I am going to discuss NAPER G question paper NAPER G 2004 with some explanation. We will discuss in explanation. So let's start. The first question of NAPER G 2004 is which of the following is related with osmotic pressure? The options are a Fick's law, Gibbs-Donnan equation, Pascal law, or Jacob-Harness-Wansdorf equation. The answer is D. As we know that this one is regarding osmotic pressure, also for chemical kinetic, chemical equilibrium, and also for stereochemistry. And we already know that Fick's law is for diffusion, and Gibbs-Donnan equation is for जो हमने पढ़ा था अनइक्वल distribution of ions regarding semi-permeable membrane, and Pascal law is for fluid dynamics, and as you know Jacobs-Harness-Wansdorf equation is for thermodynamic systems. They are regarding state functions in thermodynamic, which change occur in the state of functions regarding thermodynamic system. So we studied in this equation. Next question is joint stock company is managed by elected committee, one or two members, elected board of director, or owner. The answer is C, elected board of directors, and especially for this is also similar for share of stocks. If there will be option as share of stock, then that will be also correct answer. Okay, next one is question number 3. Acrylamide dimethyl diallyl ammonium chloride copolymer is used as conditioner, hair softener, surfactant in shampoo, or detergent. The answer is conditioner. Okay, the next one is molar extinction coefficient is depending upon the options are path length, wavelength, concentration of solute, and all of the above. The answer of fourth one is B, that is wavelength. Next one, there are questions. Question number 5 is regarding assuming the same molecular weight and carbon content, arrange the following compound classes in the expect order of increasing lower acidity. Like example compounds are sulfonamide, alkene, alcohol, and amide. The options are low pK, and according to highest pK, the low pK has sulfonamide and then alcohol, then increasing its pK value for amides, and then highest at alkene. The second one is alcohol, sulfonamide, amide, and alkene. Third one is sulfonamide, amide, alcohol, and alkene. And the fourth one is sulfonamide, alcohol, alkene, or amide. The answer for fifth question is D, that is low pK value for sulfonamide and high pK value for amides. Next is tachyphylaxis. It's a term of adverse effect. And what is the meaning of tachyphylaxis? So there are options, but the correct answer is answer B. Responsiveness decreased rapidly after administration of a drug. Next question, the substituent inductive and feed effects are. What are substituent for inductive and feed effect? They are specially proportional to their proximity to the functional group. This is only the right answer for this question. And next we will move into next part. The question number, there are some option for 7 part. So next one is regarding which one of is directly titrated with acid. So you already experienced about this question when you are in lab, how you can titrate with which drug mostly you can titrate with acid. That one is phenidine. Okay, and the next question is India plans a manned mission to the moon by which, when it was planned,
This is question paper of 2004. At that time they already planned about its mission, and recently you had seen movie also, I think so, जो इस पे थी, मिशन पे, मून पे जाने के लिए जो मिशन पे थी मूवी. एंड दिस इज़ रिगार्डिंग, अगर 2019 या 20 आता है तो आप उसमें से रेलेवेंट जो उसके आसपास वैल्यू होती है उसको आप करेक्ट कर सकते हो. ओके, इसमें जीके में ऐसा होता है कि जो हम प्लानिंग करते हैं वो हमारा सिमिलर होता है. जैसे 2005 में हमने सोचा कि 2015 में ऐसे होगा, तो ऑफकोर्स 14 और 15 के बीच में ही होगा. तो यू कैन करेक्ट ऑल्सो 2019 अगर वो ऑप्शन आता है तो. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज material used for packaging during accelerated stability study is, which type of material you can use? This one is, जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं फॉर पैकेजिंग ड्यूरिंग एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडी इज, वो किसके तरह होता है, मतलब सिमिलर किसके है, पैकेजिंग सिमिलर टू प्रपोज्ड पैकेजिंग. तो आंसर इज बी. नेक्स्ट वन इज very important, NABARD. It's a really important question. You should know its a full form, and you should know when it was when it was established and where it was established, where is its headquarter. And NABARD is just a bank for agriculture purpose. तो ये बैंक है एक NABARD, जो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. जो एग्रीकल्चर के लिए जो किसान हैं वो वर्क करते हैं, तो वो उसके उनको योजना मिली, उनको काफ़ी सारी सहूलतें मिली हैं, तो वो बैंक से इस बैंक में जाके अपना सारा कर सकते हैं. अगर लोन वगैरह लेना हो तो उनको इशू हो जाता है. वो सारा उनके जी स्पेशली उनके एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग ही बैंक है जो NABARD का आता है. तो दिस वन इस्टेब्लिश इन 12 जुलाई 1942, 1982 में ये हुआ था, स्पेशली 12 जुलाई को. ठीक है, जुलाई को. तो आप नोट कर लो बिकॉज ये क्वेश्चन आता है. और इसका हेडक्वार्टर जो मेनली इस्टेब्लिश हुआ था मुंबई में. ये बहुत बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन, तो मैं आपको साथ साथ में बताती जाऊंगी इसमें और क्या इंक्लूड कर सकते हो. तो दिस वन इज बैंक, यू नो about its this one is regarding National Bank for Agriculture and Rural Development. You should write on paper also. And next question is streptokinase is obtained from. जो भी क्वेश्चन आपको नाइपर के अकॉर्डिंगली आएंगे, जीपैट में आपने रिवाइज करा है इसलिए मैं उनको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही, बट जो नाइपर के लिए स्पेशली हैं तो मैं उनको ऑफकोर्स मैं उनको डिटेल में जाऊंगी. ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट इट, आई विल एक्सप्लेन. एंड आपको होप उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आते तो आप इजीली उसको अटैम्प्ट कर लोगे. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्ट्रेप्टोकाइनेस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच, इट्स ऑफकोर्स स्ट्रेप्टोकोकाई. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्वीन 40, दैट इज दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू शुड नो अबाउट ट्वीन 40 एंड ट्वीन 20. इस टॉपिक पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, सो यू शुड नो. एंड द ऑप्शंस आर polyethylene 20 sorbitol monolaurate. There is similar but there is difference between monolaurate, monostearate, oleate and palmitate. The answer for 40 is palmitate and the last one. And for oleate it's a 80 value, and for 60 it's a stearate, and for lauryl it's a 20, monolaurate for it's a 20. So you should notice these value also. These are very important. So अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है पॉलीइथाइलिन सॉर्बेट जो है मोनोऑलिएट है, दैट इज रिगार्डिंग इट्स ट्वीन 80. ओके, तो इसमें मैंने वैल्यू पुट करी इसीलिए वैल्यू यहाँ पे लगाई है, आपको समझ आ जाए. Next one is question, which of the following is true about cephalin? Cephalin is any of a group of phospholipid जो कि प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन में, स्पेशली हमारे ब्रेन में. तो ये अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, तो राइट आंसर क्या होगा 14 का,
You should know that there are all options are regarding this cephalin, because it's a chemically it's a phosphatidyethanolamine, and this one is also principal constituent in bacteria. In human physiology it is found in nervous tissue, and these all are the answer of this question. So right option for this question is all of the above. Next question is एंथ्रोसाइनिडीन possess what? क्या possess करते हैं? The answer is flavellum and skeleton. Right? Next one is right to privacy act as a fundamental right is implicated in the. So you should know the answer is right to personal एक्ट मीन्स राइट टू प्राइवेसी जो है एक फंडामेंटल राइट है. ये किसके लिए किस में इम्प्लिक्ट होता है? तो राइट टू द पर्सनल लिबर्टी के लिए. ठीक है, तो यू शुड नो अबाउट ऑल्सो दिस राइट टू पर्सनल लिबर्टी इज फॉर फंडामेंटल राइट. ओके, नेक्स्ट वन इज aflatoxins are naturally occurring mycotoxins that are produced by. The answer for 17 is B, that is aspergillus flavus. This one is correct answer. And next we should move into next part. Next one is question number 18, and here is the question: which of the following compound would have the highest boiling point? So this is question regarding your plus 2 class. You should know that there is fluorine and fluoro group have high boiling point. So answer is D. And next one is what is the M upon Z? What is the meaning of N upon Z? M ratio Z. M mean mass and Z is charge number. For what? For butyrofenone according to McLafferty arrangement. So the both values are for this. Answer is C, because M upon Z mass upon charge number is for this drug butyrofenone. तो उसके अकॉर्डिंगली जो मैकलैफर्टी अरेंजमेंट है उसके अकॉर्डिंगली इसकी क्या रेशो होगी? 120 एंड रेशो 106. सो आंसर शुड बी बोथ. नेक्स्ट वन इज DOT. DOT in the treatment of tuberculosis stand for. What do you meaning by DOT? इसका फुल फॉर्म क्या हो सकता है? ऑफ कोर्स इट्स डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट और थेरेपी. यहाँ पे अगर आपको थेरेपी की जगह ट्रीटमेंट आता है तो वो भी आपका राइट आंसर होगा. ओके, नेक्स्ट देयर इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. अर्थ डे is observed on which day? तो आपने अप्रैल मंथ में तो बहुत सारे आते हैं वैसे डेज. तो यू शुड नो दैट देर इज ओनली वन 22nd of April we celebrated Earth Day, and the answer is A. So I want to say that you should know about other days also, like Water Day. It's on 22nd March. You should notice that it should be on 22nd of March. Okay, for especially for Water Day. And for Environmental Day, it's regarding 5th of June. And for Anti-Tobacco Day, this was regarding 31st of May. These are very important, so you should know that for Anti-Tobacco Day, this one is regarding 31st of May. And for Anti-Narcotic Day, it's regarding 26th of June. This one is also very important. जो एंटी नार्कोटिक डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? 26 ऑफ जून. दोबारा रिपीट कर रही हूँ, यू शुड नोट इट अबाउट दिस. And Earth Day is celebrated on 22nd of April. Water Day is celebrated on 22nd of March. And Environmental Day is celebrated on 5th of June. And Anti-Tobacco Day is celebrated on
31st of May, and anti-narcotic day is celebrated on 26th of June. So you should know about these days. Right. Next question is regarding chemistry. Provide a structure that is consistent with the data below. So this one is here C9, H9 एंड N. इसके लिए हमें जो राइट ऑप्शन है वो चूज़ करना है. फॉर IR उन्होंने वैल्यू दी है हमें इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी की एंड एनालिसिस की स्पेक्ट्रोस्कोपी की एंड NMR की वैल्यू दी है. तो दीज वैल्यूज आर रिगार्डिंग फॉर विच कंपाउंड. ऑफ कोर्स दिस इज रिगार्डिंग दिस वन A. तो आंसर इज बिकॉज जो साइनाइड कंपाउंड होता है दैट हैज़ वैल्यू NMR वैल्यू रिगार्डिंग. सो इसके रिगार्डिंग ही वैल्यू हम नोट करते हैं बिकॉज ये वैल्यूज़ जो होती हैं CH2 जो इथाइल और मिथाइल जो प्रोपाइल की वैल्यू होती है ये लाइक सिमिलर होती है. तो डिफरेंस हमें सिर्फ यहाँ मिलता है. जैसे यहाँ पे अमाइन है और यहाँ पे हमारा CN है. यहाँ से वैल्यू इसकी चेंज मतलब केमिकल का स्ट्रक्चर जो आपका एनालिसिस करते हो तो उसका आपका ग्राफ जो है बहुत वेरिएट करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक 23rd, दैट इज ANVISA. ANVISA is a regulatory body of which. So ANVISA is this one is very इम्पॉर्टेंट बिकॉज हम लोग तो नहीं जानते बट ये हमारा ब्राज़ील में ही इसका है जो हेडक्वार्टर ब्राज़ील में ही स्टार्ट हुआ था. दिस वर्ड इज रेफर टू एजेंसिया नेशनल डी विजिलेंसिया सैनिटारिया. दिस इज इट्स अ फुल फॉर्म. You should Google it also, and it's a abbreviated term from Portuguese. जो पोर्चुगीज गर्ल है उसकी लैंग्वेज में इनको डिस्ट्रीब्यूट किया था. दिस वन इज़ रिगार्डिंग ड्रग रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस. हम तो हमारे जो स्टेट बोर्ड है वहाँ से करवाते हैं रजिस्ट्रेशन, बट जो ब्राज़ील के अकॉर्डिंग है ANVISA इज़ अ रेगुलेटरी बॉडी ऑफ ब्राज़ील. तो पोगुलन इसकी जो है उसका पोगुलिस वहाँ से एब्रीवेशन टर्म ली है. उनकी लैंग्वेज थी तो वहाँ से एक टर्म ली है. तो ये स्टार्ट कब हुआ था? 26 ऑफ जैन 1999 में. 26 ऑफ जैन 1999 में. ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर लेना बिकॉज इसमें भी क्वेश्चन आते हैं काफ़ी. नेक्स्ट वन इज action of thiopental sodium is inhibited by which drug? So answer for 24th is for both picrotoxin as well as for biculin. Then the answer is both A, B, A and B. The answer is C. Okay, for 24th question. And next one is 25th. This is molecule. And they are asking about why does the dye in show below fail to undergo a Diels-Alder reaction with even the most reactive dienophils. So इसमें क्या मतलब इसका क्या हो सकता है? ये डाइन का रीज़न क्या हो सकता है? इसका Diels-Alder रिएक्शन में डाइन जो है वो शो करता है बिलो फेल टू अंडरगो. सो क्या रिएक्टिव जो मोस्ट रिएक्टिव डायनोफिल्स है दोनों यहाँ पे जो है इसके डाइन लगा है. जो डाइन लगा है यहाँ पे हमारी सिस कन्फॉर्मेशन जो ज़रूरी है बट यहाँ पे ज़रूरी नहीं है. तो डाइन कैन नॉट अचीव द नेसेसरी एस सिस कन्फॉर्मेशन. दिस वन इज़ राइट आंसर दैट डाइन कैन नॉट अचीव द नेसेसरी एस सिस कन्फॉर्मेशन. नेक्स्ट वन इज फाइंड आउट द मिसिंग नंबर. सो आपको मैं यहाँ पे आपको पहले कॉन्सेप्ट बताऊँगी कि हमने यहाँ पे ये सपोज आपका जो 24 है और 15 है. ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास 63 है. तो हम हमेशा जब ऐसी कंटेंट आता है ना तो हम हमेशा क्या करेंगे, इसको स्क्वायर रूट में लेके देखना. जैसे स्क्वायर में लेके देखना, जैसे 5 का स्क्वायर आता है हमारे पास 25, राइट.
तो उसको 1 माइनस करोगे तो हमारा क्या आ जाएगा 24। एंड अगर हम 4 को करते हैं, 4 स्क्वायर को करते हैं तो हमारा क्या आता है, 4 स्क्वायर को हम 16 जो है 4 स्क्वायर है हमारा 16, तो उससे 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 15। सो 24 एंड हमारा जो इसकी वैल्यू बन रही है यहाँ पे 24, यहाँ पे 15, तो दीज बोथ आर रेलिवेंट। एंड नेक्स्ट इज 63। ऑफकोर्स अब 63 जंप कर रहा है तो उसके रेलिवेंट ही होगी, उसके आगे पीछे वैल्यू होगी उसकी। तो हम देखते हैं जैसे 8 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 64। अगर 64 में से 1 माइनस करते हैं तो क्या आ जाता है हमारा 3। तो 8 का स्क्वायर हम ले रहे हैं तो उससे हम या तो बढ़ेंगे या हम कम करेंगे वैल्यू, ठीक है, या तो हम 9 कर देंगे या फिर पीछे चले जाएंगे 7 पे कर देंगे। तो दोनों में कौन सी, यहाँ पे जितनी भी वैल्यू है उसके रेलिवेंट नहीं हो रही, तो हमारी जो है 7 के अकॉर्डिंग अगर हम करते तो हमारा सीधा सीधा 49 आता है। तो उससे 1 करोगे 1 माइनस करोगे तो क्या आएगा हमारा 48। तो करेक्ट आंसर इज हमारा सी। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो आपने क्या करना है, हमेशा आप जब माइनस आगे पीछे माइनस करोगे या फिर आप मोस्टली स्क्वायर करके देखना। तो इसके लिए आपको जो जितने भी स्क्वायर रूट है मेन 5 का, ये 7 का और 9 का, ये जितने भी मतलब बहुत सारे हैं, आपको स्क्वायर रूट पता होना चाहिए मैथमेटिक टर्म्स, ठीक है। तो उससे आप 1 माइनस करके देखना अगर आपकी टर्म्स आती है। तो ऐसे अगर आपको 5 स्क्वायर में भी आ जाए, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, 5 स्क्वायर कर देते हैं सीधा डायरेक्टली, 5 स्क्वायर कर देते हैं, 10 स्क्वायर कर देते हैं, फिर 15, मतलब एक तो इसका स्क्वायर होता है, एक इसमें डिफरेंस भी आ जाता है 5 का। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं ये। सो नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, how many significant number are there in 28.0? So the answer for this one is also significant number। आपको मैं पहले इसका कॉन्सेप्ट बता दूं कि जैसे हमारे पास 28 है, इसके पास जितने भी इसके बाद नंबर आएंगे हम इसको 0 को इंक्लूड करेंगे तो हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट होंगे 3, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पे मैं समझा देती हूँ। 0.0024 है हमारा, 25 ले लो, ठीक है, जहाँ पे 0 है तो हम आगे वाली 0 नहीं कंक्लूड करेंगे, ठीक है, इसको हम सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे। तो हमारे सिग्निफिकेंट होंगे 25 मीन्स 2, ओनली 2 सिग्निफिकेंट आर देयर। अगर हमारा 20 आ जाता है 208 तो हम बिटवीन के भी 0 को कंक्लूड करेंगे। तो हमारे कितने हुए यहाँ पे 3, नोट करते जाना साथ में, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हमारा 50005 देयर इज़ नो एनी डिजिट, सॉरी देयर इज़ नो एनी डेसिमल, सो हम जो डेसिमल आ नहीं रहा तो इसमें हम जितना भी है, अगर डेसिमल होता भी तब भी हमारे यहाँ पे 5 होते, अगर डेसिमल नहीं है तो तब भी हमारे यहाँ पे डिजिट कितने हैं 5, ठीक है। इसको हम 0 को इंक्लूड करेंगे। 0 को कहाँ इंक्लूड नहीं करना, एक तो हमारा 0 आगे है, अगर 0 की टर्म्स आगे आती हैं तो उसको इंक्लूड नहीं करना, जो आगे रेगुलर 0 आती। तो एक हमारा जो जैसे सपोज 1 2 6 यहाँ पे 0 0 0 0 0 आया था तो इसको हम सिग्निफिकेंट नंबर नहीं मानेंगे। यहाँ पे हमारे कितने हुए 3 ओनली, ठीक है। अगर इसकी जगह पे अगर 500.0 आ जाए तो अब अगर पॉइंट लगा हो तो हम इसमें सिग्निफिकेंट नंबर मानेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर 2.0034 आता है तो कितने सिग्निफिकेंट होंगे हमारे यहाँ पे, जहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है तो कितने होंगे हमारे 5, ठीक है। तो मतलब जहाँ पॉइंट आ रहा है बस हम आगे की 0 कहाँ इंक्लूड नहीं करेंगे, आगे की टर्म्स में, ठीक है। अगर 0.28 आता तो हम 0 को नहीं कंसीडर करते, ठीक है। पीछे आ रहा तो हम कंसीडर करेंगे, पीछे और बिटवीन में जितना भी आएगा हम इंक्लूड करेंगे। बट अगर लास्ट में कॉन्टीन्यूसली जितनी 0 आ रही है वो हम इंक्लूड नहीं करेंगे,
ठीक है। तो यू शुड कीप इन योर माइंड बिकॉज सिग्निफिकेंट नंबर पूछा जाता है, हर क्वेश्चन हर बार आएगा आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट वन इज हम आज 30 और 35 क्वेश्चन ही करेंगे। सो यू डोंट वरी इफ़ यू आर गेटिंग बोर, तो इसके लिए आई एम रियली सॉरी। आप मुझे खुद बता सकते हो कि आपको कौन सा वे अच्छा लगता है, ठीक है, फाइन। सो द क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28 क्वेश्चन, सॉरी 28 क्वेश्चन। शेयर प्रीमियम इज, शेयर प्रीमियम जो है हमारी वो है क्या एक्चुअल में, तो वो हमारा एक रिसिपिएंट है। कौन सा टाइप का रिसिपिएंट है? रिवेन्यू रिसिपिएंट है, ठीक है। ये हमारा जो है ड्रग डोसेस जो हमारा बिजनेस मैनेजमेंट वाला जो सब्जेक्ट है, मैनेजमेंट सब्जेक्ट से क्वेश्चन है ये उठाया, तो आप वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें जो आप बैंक जो हमारी बैलेंस शीट है वो करना है, ट्रायल बैलेंस करना है आपने। इसमें इम्पॉर्टेंट बता रही हूँ मैं टॉपिक, ट्रायल बैलेंस करना है, जो बैलेंस शीट है वो अच्छे से करना है, इन्वेंट्री कंट्रोल अच्छे से करना है, ठीक है। तो ये आपको इसमें से क्वेश्चन मिलेंगे। नेक्स्ट है हमारा मालजी इज रिलेटेड विद, मालजी है क्या? ये एक जो है हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी है। तो किस टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये? हमारी जो एक मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है। दिस इज सॉफ्ट आयोनाइजेशन टेक्निक and we can study protein and peptide studies. So answer is D. Next question is which of the following compound will have its carbonyl absorbance appear at the lowest frequency? So इसमें कौन सा कंपाउंड है जो हमारी जिसके पास लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है? तो इसमें हमारा जो है बी कंपाउंड है जिसकी लो फ्रीक्वेंसी है, बिकॉज इसमें जो बॉन्ड लगा है हमारा, ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप जो लगा है इसके साथ जो बॉन्ड लगा है इसके साथ हमारी फ्रीक्वेंसी जो है लो आती है। आपने सब्स्टिट्यूशन पढ़ी होंगी SAR में, तो उसके अकॉर्डिंगली जो स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशन है, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप है, उसमें से क्वेश्चन भी आते हैं। और ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी, ये कार्बोनिल जो नाम है ना ये केमिस्ट्री में, तो इसको अच्छे से कर लेना, बिकॉज इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। कार्बोनिल की अब्जॉर्बेंस पूछ लेते हैं, इसकी सब्स्टिट्यूशन पूछ लेते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर अच्छे से करना, ठीक है। इसके बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट सब करके जाना। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्ट्रेशन इज लीगली कंपल्सरी। अब देखो लीगली कंपल्सरी क्या हो सकता है, अगर हम चाहें कि हमारा जो कानून के अकॉर्डिंगली हमारा जो कंपल्सरी है, इसमें ऑफकोर्स आप जो सोल प्रोप्राइटरशिप जो होती है उसमें तो नहीं करते, पार्टनरशिप में भी नहीं करते, तो कॉर्पोरेशन बैंक में भी नहीं करते, बट जो जॉइंट स्टॉक कमेटी होती है उसमें आपको लीगली कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन होती है, क्योंकि उसमें जॉइंट होती है और आपकी स्टॉक होता है, जो स्टॉक आपका मटेरियल सारा जो इकट्ठा इतना सारा, उसकी एक कमेटी, जॉइंट स्टॉक की कमेटी जो है उसकी रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है, क्योंकि आप कोई गलत यूज़ करते हो तो दूसरे का नाम आ जाता है, तो इसलिए आपका सारा कंफर्म होना, डाटा क्लियर होना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट इज प्रोमियस फार्मा इज ऑन्ड बाय। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं कि ये फार्मा कौन चलाता है, ये फार्मेसी किस कंपनी की मेडिसिन निकालती है, ऐसे क्वेश्चन आपको भी करने हैं, ठीक है। तो आंसर फॉर 32nd इज रेडिस लेबोरेटरी। रेडिस लेबोरेटरी जो है वो है इसकी ऑनर, तो प्रोमिस फार्मा की, ठीक है। तो आप बाकियों की भी आपने अच्छे से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33 डैश percentage of shares should be held by a company in another company so as to become subsidiary. सब्सिडरी बनने के लिए हमें जो है अनदर कंपनी से कितने % शेयर करने पड़ेंगे? ऑफकोर्स आपको जो है मोर देन 50% शेयर करने पड़ेंगे इसके लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लोच एंड पोस्टल। 34 क्वेश्चन। ब्लोच एंड पोस्टल वॉन नोबेल प्राइज ऑफ 1952 फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन। सो ऐसे जो प्राइस के रिलेटेड है क्वेश्चन वो भी बहुत आते हैं, तो आपने
जितने भी हैं प्राइस, जिसके भी आईआर ने किसका आईआर जो है उसका प्राइस किसने वॉन्ट किया था, एनएमआर का। तो आपको इसमें क्वेश्चन आंसर मिल गया है कि इसका जो है ब्रॉच एंड पोर्सन जो है वो उसने ही 1952 में जो कंट्रीब्यूशन की थी उसमें प्राइस जो है इंक्लूड उसने वॉन्ट करा था एनएमआर का। ठीक है, एनएमआर में ही उसकी स्टडी थी। तो डीएससी का भी फ्लोरियर ट्रांसमिशन का, इन सब स्पेक्ट्रोस्कोपी का आपने करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इथाइल एसीटो एसीटेट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम इथाइल एसीटेट बाय द। सो जो जितनी भी कंडेंसेशन है ये आपने इसकी जितनी भी सिंथेसिस है मैकेनिज्म है अच्छे से करना है, बिकॉज इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो नोट करते जाना, क्योंकि हर बार आपको इसमें से क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं। तो आपका ये इसमें जो है किस टाइप की किस में ये प्रिपेयर किया जा सकता है, तो हमारा है आंसर क्लेजन कंडेंसेशन। ठीक है, जो इथाइल एसीटो एसीटेट है उसको हम कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं, इथाइल एसीटेट द्वारा बाय द क्लेजन कंडेंसेशन। ठीक है, तो कंडेंसेशन जितनी भी है इंपॉर्टेंट है, इनकी प्रिपरेशन एग्जाम्पल्स आपको करनी है। तो अभी फर्स्ट पार्ट में 35 क्वेश्चन ही इनफ है। होप आपको समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ गिव मी फीडबैक इन कमेंट बॉक्स। तो मैं आगे ऐसे ही सीरीज़ लेके जाने वाली हूँ आपकी। तो होप आपको समझ आई होगी। तो प्लीज़ क्लिक ऑन लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन ऑल्सो। यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। All the best to all NIPER students, and hope I will see all of you in Mohali in SAS Nagar, and so because I'm also from Punjab, तो आप मेरी विश यही है सारे क्वालिफाई करो, बिकॉज यू हैव लॉट ऑफ टाइम फॉर प्रिपरेशन। सो डोंट वरी, आई एम हियर। इफ़ यू आर गेटिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम you can email me. So thank you for watching my video. Thanks to all students.